وہ جو آسمان کو تنبو کی طرح تانتا اور اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اسی کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم، مسیح میں آپ کا بھائی پاسٹر محبوب دلشاد شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ آج خدا نے یہ خوبصورت موقع دیا تاکہ میں خداوند کے زندہ پاک کلام کے بھیدوں کو آپ لوگوں کے ساتھ اس پی ایم سی چینل کے وسیلہ سے پیش کر سکوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی پاسٹر جاوید کا، جنہوں نے آج اس زبردست اور خوبصورت اپرچونٹی کے لیے مجھے یہ موقع بخشا تاکہ میں خداوند کے پاک کلام کی منادی، انجیل کی منادی اور خوشخبری کا پیغام لے کر آپ تک پہنچ پاؤں۔ میرا دل نہایت شکر گزاری سے لبالب بھرا ہوا ہے، تو میں اس کے لیے پی ایم سی چینل اور اس کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سو میرا اس بات پر مکمل یقین ہے کہ جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں آتے ہیں، یا جب بھی خداوند کی پاک حضوری میں جھکتے ہیں، جب بھی ہم اس کی پاک حضوری میں کھٹکھٹاتے ہیں، تو وہ ہمارے ایمان کے مطابق ہمیں جواب دیتا ہے۔ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس کی ہم تمجید اور ستائش کرتے ہیں، جو وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی دھتکارتا اور کبھی رد نہیں کرتا۔ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہے، اور آج یقین کامل ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھ سمیت جتنے اس پی ایم سی چینل کے وسیلہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یقیناً آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں گے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے، اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، اور یقیناً اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اس کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، بلکہ وہ ہمیشہ زندگیوں میں اثر رکھتا ہے۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں، اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج یک بار پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں خداوند کا زندہ اور معتبر کلام لے کر حاضر ہوں۔ میری مراد اس کلام سے ہے جو زندہ کلام ہے، جو لا خطا کلام ہے، جو لا ریب کلام ہے، جو لاسانی کلام ہے، جو لافانی کلام ہے، جو معتبر کلام ہے، اور وہ کلام جو ہمیشہ زندگیوں میں اثر چھوڑتا ہے، جو کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ سو آئے ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور چند لمحہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں۔ قادر مطلق خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ میرا ایمان ہے کہ تو آج بھی ایسا کلام دے گا جو ہم سبوں کے لیے باعث برکت ثابت ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ شاید خداوند کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور ایک کو ہم عہد عتیق یعنی پرانا عہد نامہ، اور دوسرے کو عہد جدید یعنی نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بائبل مقدس میں سے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے کچھ پڑھیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یقیناً جب ہم توجہ کے ساتھ سنتے ہیں ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے یا ایمان میں آگے بڑھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ جب ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، جسے لوگ پڑھنے سے ڈرتے اور کتراتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اسے نہیں پڑھنا، یعنی مکاشفہ بید کی کتاب، تو اس میں جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں یا جب اس مکاشفہ کی کتاب کو کھولتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں بڑی واضح طور پر ہمیں لکھی نظر آتی ہیں، ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ اور وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی بات ہے جس کے کان ہوں وہ سن لے، اور دوسری بات ہے کہ فلاں کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ یہ بار بار دو چیزیں ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اب خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے یہ خوبصورت موقع دیا اور خوبصورت کان دیے تاکہ ہم اس کی خوبصورت باتوں کو توجہ کے ساتھ سن سکیں۔ تو یقیناً کلام اسی صورت میں بابرکت ثابت ہوتا ہے، کلام اسی صورت میں زندگیوں میں اثر چھوڑتا ہے
जब हम पाक कलाम को तवज्जो के साथ सुनते हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है, जितने आप यहां पर मौजूद हैं और जितने मेरी इस आवाज को इस पीएमसी चैनल के वसीला से सुन रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तवज्जो के साथ खुदावंद के पाक कलाम को सुनिएगा। वादों का सच्चा खुदा, आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं कि वादों का सच्चा खुदा, नामुमकिनात का खुदा, मुजज़ात का खुदा, जज्बात का खुदा, एहसासात का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, उम्मतों का खुदा, इसराइल का खुदा वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पर हाजिर हूं। और जब हम उसका नाम लेते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम उसे याद करते हैं, जब हम उसकी पाक हजूरी में झुक जाते हैं, वो आ मौजूद होता है और हमें अपनी बरकतों से नवाजता है। तो आज भी वो हमें अपनी बरकतों से नवाजेगा, लेकिन शर्त है तवज्जो के साथ सुना जाए। तवज्जो के साथ सुना जाए। सो आपसे गुजारिश है कि जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ देता हूं। पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील बाब उसका 18 और उसकी 35वीं आयत से हम पढ़ते हैं। पाक कलाम में लिखा है, जब वह चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि राह के किनारे बैठा हुआ एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चलाकर कहा, आई यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चलाया, आई इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, आए खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से जो चंद आयात आप लोगों के नजदीक तलावत की गई, इन आयात की रोशनी में जो आज मेरा मजमून है वो ये है, खुदा को यानी यीशु मसीह को जानना। हम कई सालों से खुदावंद के पाक कलाम को सुनते चले आ रहे हैं और हम यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जानते जिस तरह जानने की जरूरत है। सो वक्त का तकाजा है, वक्त की जरूरत है कि हम यीशु मसीह को सही और अच्छे तरीके से जाने जैसे जानने की जरूरत है। अगर आज मैं ये सवाल आपसे करूं कि क्या आप यीशु को जानते हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा, जी हम यीशु को जानते हैं। सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि यीशु को जानना कि वो इस दुनिया में आया और वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं है। शायद हम यीशु को इस हद तक जानते हैं कि वो एक पैगंबर है, वो एक नबी है, वो इस दुनिया में आया, उसने इंसानियत के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया। मैं समझता हूं कि इतना ही जान लेना काफी नहीं है, बल्कि यह जानना बहुत जरूरी है कि वो मेरा मालिक, खालिक, राज़िक और इसके साथ साथ वो मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। उसने मुझे मखलसी दी है, उसने मुझे बचाया है, छुड़ाया है। जब हम इस चंद आयात के बारे में देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसे बिल्कुल नजर नहीं आता और ये ना जाने जन्म से ही, पैदाइश से ही अंधा है, और इसके घर वालों ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फैसला किया। और फैसला क्या है कि इसको एक ऐसी जगह पर बैठाया ताकि वो वहां पर बैठकर अपने घराने के लिए, अपने खानदान के लिए हर रोज रुपया पैसा जो है वो इकट्ठा करे। और वो कई सालों से, ना जाने कई सालों से वहां पर बैठकर जो है वो भीख मांग रहा था, क्योंकि वो अंधा था, उसे दिखाई कुछ नहीं देता लेकिन सुनाई सब कुछ देता है। और ये कई सालों से जो है वो वहां पर बैठकर भीख मांग रहा था। आज भी जब यीशु मसीह का वहां से गुजर हुआ, उस शख्स का वहां से गुजर हुआ जो मेरा आका, मेरा मालिक,
میرا خالق اور میرا رازق ہے، جو آقا نامداد ہے، جو تخلیق موجودات ہے، جو فخر کائنات ہے، جس کے وجود سے کائنات کا وجود ہے اور جس کے وجود سے میرا اور آپ کا وجود ہے، جو ہمارا بانی ہے، جو ہمارا نجات دہندہ، بچانے والا، چھڑانے والا ہے، جب وہ اسی راستے سے گزرنے کو تھا تو وہ اندھا جو برتمائی کا بیٹا، تمائی کا بیٹا برتمائی وہاں پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، جب اس نے لوگوں کے جانے کی آواز سنی تو آج اسے شور میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہوئی، اور جب اسے تبدیلی سی محسوس ہوئی تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہوا، بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ یہ شور کس طرح کا ہے؟ اور جب اس نے آواز سے بلند یہ پوچھا، یہ سوال کیا کہ کون جا رہا ہے؟ یہ شور کیسا ہے؟ تو جو آگے جاتے تھے، جو لوگ ساتھ اس کے گزر جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ جو ہی اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے تو بے ساختہ وہ بلند آواز سے پکارا، اس نے چلانا شروع کیا اور چلایا، آئی ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہی اس نے سنا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے، اس نے چلانا شروع کر دیا، اس نے فریاد شروع کر دی، اس نے بلانا شروع کر دیا، اس نے رحم کی اپیل شروع کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یسوع کو جانتا تھا کہ وہ شخص ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے تو اس نے بلند آواز سے چلا کر کہا، کیونکہ وہ یسوع کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا، وہ یسوع کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو 4 دن کے لازر کو قبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے لازر باہر آ جا، اور لازر کفن سمیت باہر آ جاتا ہے۔ اس شخص نے یسوع کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ شاید ہم نے بھی بہت کچھ سنا ہے کہ یسوع مردوں کو زندہ کرتا، اندھوں کو آنکھیں دیتا، گونگوں کو جو ہے وہ بولنے کی ہمت اور طاقت دیتا، سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے شاید، لیکن شاید ہم نے کبھی اس طرح سے اسے پکارا نہیں، اس طرح سے اسے آواز نہیں دی جیسے اس اندھے نے جو راہ کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا، اس نے آواز دی ہے۔ اور جب اس نے آواز دی ہے تو معاشرہ آ کھڑا ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے چپ کروانے کی کوشش کی اور خاموش رہا، کیوں شور کر رہا ہے، کیوں رولا ڈال رہا ہے؟ لیکن وہ خاموش نہ رہا کیونکہ وہ یسوع کو جانتا تھا۔ اور میرا یہی آج کا سوال ہے، یعنی یسوع کو جاننا۔ جو لوگ یسوع کو جان جاتے ہیں، جو لوگ یسوع کے قد کاٹ کو، یسوع کی حقیقت کو، اس کی اصلیت کو جان جاتے ہیں، وہ پھر خاموش نہیں رہتے۔ زمانہ لاکھ انہیں چپ کروانے کی کوشش کرے، گھر والے لاکھ انہیں کہے خاموش ہو جائیں، معاشرہ لاکھ انہیں چپ کروانے کے لیے بڑے سے بڑے قانون بنائے، لیکن وہ خاموش نہیں رہتے، وہ اور زیادہ چلاتے ہیں۔ اور لکھا ہے وہ اور زیادہ چلایا، آئی ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور پھر ہوا کیا؟ جب وہ زیادہ چلایا، آئی ابن داؤد مجھ پر رحم کر، تو پاک کلام میں لکھا ہے یسوع نے کہا اسے میرے پاس بلاؤ۔ اور پھر یسوع نے جب اس نے یسوع کو پکارا، یسوع سے فریاد کی، اس سے رحم کی اپیل کی، تو یسوع نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اب یہاں پر بڑا خوبصورت سوال ہے کہ آخر تیری مرضی کیا ہے، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ تو آج اس نے وہ کچھ مانگا ہے جو شاید اس نے کبھی نہیں مانگا تھا۔ نہ جانے کئی سالوں سے وہ بیٹھا ہر شخص سے آ کر کہہ رہا تھا مجھے کچھ دے جا، مجھے کچھ دے دا، اور ہر شخص کے پاس ایک ہی سوال تھا، اور سوال کیا تھا؟ مجھے کچھ دے جا۔ روپیہ پیسہ مانگتا تھا، سونا چاندی مانگتا تھا، لوگ اسے سکے دیتے تھے، لوگ اسے روپیہ پیسہ دیتے تھے، اور یوں اس طرح سے وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ روپیہ پیسہ اکٹھا کرتا تھا۔ لیکن آج جب اس سے سوال کیا گیا، آج جب اس سے جو ہے اس شخص نے پوچھا جو سب کچھ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو آج جب اس سے یہ سوال کیا گیا، کیونکہ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ وہ ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے جو سب کچھ دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، تبھی تو اس نے کہا میں بینا ہونا چاہتا ہوں، میں بنائی چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج اس نے روپیہ پیسہ نہیں مانگا،
आज इसने सोना चांदी का सवाल नहीं किया, आज इसने चंद टकों का, चंद सिक्कों का सवाल नहीं किया, बल्कि इसने वो मांगा है जो शायद इसने जिंदगी में कभी नहीं मांगा था। क्योंकि यह शख्स जानता था कि यही वो शख्स है जो मुझे सब कुछ दे सकता है, जो मेरी बीनाई मुझे वापस कर सकता है, जो मुझे बीना कर सकता है। और अगर यह कहेगा तो मैं अभी इसी वक्त जो है वो देखना शुरू कर दूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि शायद हम भी कई सालों से, जैसे अंधा फकीर एक रास्ते पे बैठकर भीख मांग रहा था, हर आने जाने वाले से यही सवाल कर रहा था, शायद हमारा सवाल भी कुछ इसी तरह का है। हम कई सालों से, जब से होश संभाला है, हम चर्चिज में आते हैं, हम इबादत में जाते हैं, हम खुदावंद की बंदगी में जाते हैं, सवाल वही है, रुपए पैसे का सवाल है, अपनी जरूरत का सवाल है, अपने रुपए पैसे का सवाल है, मुझे ये दे जा, मुझे ये दे जा, मुझे ये दे जा। लेकिन आज जब आप अपने दरमियान उस मसीहा को महसूस करें, अगर आज आप इस कलाम के दौरान अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी आंखें बंद करके जब आप देखें कि एक शख्स आपसे सवाल कर रहा है, आप अपनी बातनी आंखों से देखें कि एक शख्स बिल्कुल आपके सामने खड़ा है और जैसे वो अंधे से पूछ रहा है, उस बेकारी से पूछ रहा है, तू क्या चाहता है। अगर आज यही सवाल आपसे हो और वो आपसे पूछे, आप इस आवाज को सुने, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो क्या ख्याल है, हमारा सवाल रुपए पैसे का होगा, हमारा सवाल दौलत का होगा, हमारा सवाल बहुत ज्यादा रुपए पैसे का होगा, क्या सवाल, हमारा जवाब क्या होगा। अगर यही सवाल मुझसे और आपसे आज किया जाए, यकीनन हमारा जवाब कुछ इसी तरह से होगा। हमें इस रूटीन से हटना है, हमें इससे निकलना है, हमें कई सालों की पुरानी रस्म और रिवाज को, पुराने तौर तरीके को छोड़ना है। अगर साल तब्दील हो गया है, अगर साल बदल गया है, तो मुझे अपने अंदाज को बदलना है, मुझे अपने ख्याल को बदलना है, मुझे अपने सवाल को बदलना है, मुझे मांगने का अंदाज बदलना है। और आज वो कुछ मांगना है जो शायद कभी जिंदगी में नहीं मांगा। और वो क्या है, मैं बीना होना चाहता हूं, मैं तेरी निजात के अजायब को देखना चाहता हूं, मेरी बातनी आंखों को खोल दे, मुझे निजात दे, मुझे रहाई दे, मुझे खलासी दे, मुझे मखलसी दे, मुझे छुटकारा दे, क्योंकि तू ही ऐसा वो शख्स है जो देने की कुदरत और ताकत रखता है। तो यकीनन वो शर्मिंदा नहीं करेगा। यहां पर जब अंधे ने, उस अंधे राह के किनारे जो बैठा भिखारी था, जब उसने ये सवाल किया कि मैं बीना होना चाहता हूं, तो क्या ख्याल है, यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे से मुश्किल है? नहीं, बल्कि कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और पाक कलाम में लिखा है वो उसी वक्त उसका रिजल्ट जो है वो सामने आया, उसी वक्त उसने देखना शुरू कर दिया। एन इसी तरह से जब आज उसके पाक कलाम को सुने, उसको हकीकी तौर पर जाने, और जब हम उसको हकीकी तौर पर जाने और उससे वो सवाल करें, वो मांगे जो शायद जिंदगी में हमने कभी नहीं मांगा, तो आज क्योंकि वो देने की कुदरत और ताकत रखता है, हमें सबसे पहले देखना है मेरी मुश्किल क्या है। बाज़ वक़्त हम सोचते हैं कि मुश्किल क्या है, हम परेशान होते हैं, परेशानी की वजह का पता नहीं है कि मैं परेशान क्यों हूं। आज हम माशरे में देखते हैं कि हर शख्स परेशान नजर आता है। आप किसी से पूछें भाई जी की हाल है, हालात जरा थोड़े माड़े ने, हम इसी तरह का जवाब देते हैं। और हर बंदा यहां पर परेशान नजर आता है, हर बंदा यहां पर हमें जो है वो अजीब सी कफियत में मुब्तला नजर आता है। और पहले तो इस बात को देखना है कि मुझे परेशानी है क्या, मुझे टेंशन है किस बात की। अगर पता चल जाए कि मसला यह है, अगर पता चल जाए कि प्रॉब्लम यह है, अगर पता चल जाए कि दुख यह है, अगर पता चल जाए कि रोग यह है, अगर पता चल जाए कि बीमारी यह है, अगर पता चल जाए कि वजह यह है, फिर उस वजह को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि कौन इस मुश्किल का हल किसके पास है। अगर मुझे रुपए पैसे की जरूरत है तो मुझे पता चल जाए कि मेरी मुश्किल जो है वो इस वक्त, मेरी जरूरत जो है वो रुपया पैसा है, तो मेरे जहन में यह सवाल आता है, या मेरे जहन में को मैं जब मैं अपने जहन में सोचकर एक नतीजे पे पहुंचता हूं कि मेरी परेशानी की वजह जो है वो मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, तो फिर मैं सोचता हूं कि मेरी मुश्किल, इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कौन करेगा। फिर मैं अपने रिश्तेदारों को देखता हूं, फलां फलां फलां, फिर नहीं ये नहीं है, ये फलां, तो फिर हम एक नतीजे पे पहुंचे कि फलां शख्स जो है वो मेरी मदद कर सकता है। अगर मुझे रुपए पैसे की जरूरत हो और मैं किसी छोटे बच्चे से जाके कहूं कि बेटा मुझे 50,000 चाहिए, तो क्या ख्याल है वो मुझे दे देगा? नहीं,
मैं शर्मिंदा हूंगा, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी परेशानी को, अपनी प्रॉब्लम को सही जगह पर लेके जाने की जरूरत है। अपनी परेशानी को सही मकाम पर लेके जाने, सही बंदे के पास लेके जाने की जरूरत है। मैं सुबह उठूं और जाकर कपड़े वाली दुकान पे कहूं कि रात की तबीयत खराब है, कुछ दवाई दे दें, अगर हो सके तो ड्रिप लगा दें, तो क्या ख्याल है? मुझे शर्मिंदगी होगी क्योंकि वो कपड़े वाली दुकान है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मैं मेडिकल स्टोर पे जाके कहूं कि वालदा के लिए एक सूट दे दें, मुझे बेहतरीन पेंट कोट दे दें, अच्छी शलवार कमीज दे दें, तो शर्मिंदगी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने सही जगह का इंतखाब नहीं किया। आज इस अंधे ने, जो अंधा बरतमाई का बेटा बरतमाई है, जो राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, जो हर आने जाने वाले से एक ही सवाल कर रहा था, आज इसने महसूस किया, और ऐसा महसूस किया कि जोर से चलाया, मुझ पर रहम कर, क्योंकि इसको अंदाजा हो गया था, यह जान चुका था, यह यीशु को पहचान चुका था, यह यीशु की हकीकत को और उसके इख्तियार को मुकम्मल जानता था कि यही वो शख्स है जो मुझे बीना, यानी जो बिनाई दे सकता है, मेरी आंखों की रोशनी मुझे दे सकता है। यही वो शख्स है जो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। इसलिए तो आज उसने यही सवाल किया कि मैं बीना होना चाहता हूं। और पाक कलाम में लिखा है कि फौरन जब यीशु ने कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तो वो बीना हो गया, उसने देखना शुरू कर दिया। आज मुझे और आपको देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है कि आया मैं अगर यीशु को जानता हूं तो किस हद तक जानता हूं। याद होगा कि यायर के सरदार था, जिसकी बेटी बीमार थी, यायर की बेटी, जब वो यीशु के पास आया कि मेरी बेटी बीमार है, तू चल और उसको शिफा दे, तो थोड़ी ही देर के बाद लोग पीछे से वापस उसको बुलाने के लिए आ गए और कहा, उस्ताद को तकलीफ ना दे, पानी सर से गुजर गया है, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे। शायद वो लोग इस हद तक जानते थे कि ये जो शख्स है जिसे यीशु कहते हैं, जो अंधों को आंखें देता है, जो बीमारों को ठीक करता है, जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, ये शायद इस हद तक ही कर सकता है। ये बीमारों को ठीक कर सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, कोड़ियों को पाक साफ कर सकता है, लेकिन शायद इसके पास मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत और ताकत नहीं है। इसलिए तो पास आकर सरदार से कहा, उस्ताद को तकलीफ ना दे, उसे परेशान ना कर, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन यीशु ने उसे कहा, फक्त इत्काद रख। अब वो जो यायर था, जो सरदार था, उसके पास दो तरह के ख्याल थे। एक तो लोगों का ख्याल था कि लड़की मर चुकी है, और दूसरी तरफ यीशु मसीह की जबरदस्त पुरफजल स्टेटमेंट, यीशु की वो तसल्ली कि इत्काद रख। अब उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि किसकी बात पर यकीन करे, लेकिन उसने यीशु की बात को जाना, यीशु की बात पर यकीन किया, और जब यीशु की बात पर यकीन किया तो यकीनन उसने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को जिंदा पाया। तो यह है बात, यीशु को जानना। आज शायद हम कई सालों से, जब से होश संभाला है, हम यीशु के नारे लगाते और यीशु की जय जयकार करते नजर आते हैं, लेकिन शायद उस हद तक हम नहीं जानते जितना जानने की जरूरत है। तो जरूरत इस बात की है कि मुझे और आपको यीशु को जानना बहुत जरूरी है। यह जानना बहुत जरूरी है कि वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। हर मसले का हल उसके पास है, हर बीमारी का हल उसके पास है, हर बीमारी का इलाज उसके पास है। बस ईमान रखने की जरूरत है, बस इत्काद रखने की जरूरत है। जब आप इत्काद रखेंगे, जब आप ईमान रखेंगे, तो यकीनन आप जिंदगी में बरकत पाएंगे। मुझे यहां पे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ रही है। न्यूयॉर्क के एक ड्राइंग रूम में मियां बीवी बैठे दोनों बात कर रहे थे, और बात क्या कर रहे हैं कि हमारे बेटा, जिसकी उम्र 9 से 10 साल है, जो उसके सर में एक रसौली है, जो एक ट्यूमर है, जो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि यह इलाज है, डॉक्टर्स ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है।
अब तो कोई मोजज़ा ही है जो इसे बचाए। जब वो आपस में मियां बीवी गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 11 से 12 साल थी, वो भी वहां पर बैठी मौजूद थी। और जब उसने अपने पेरेंट्स को यह बात करते हुए सुना कि मेरा जो छोटा भाई है, डॉक्टर्स इसके बारे में कहते हैं कि यह मर्ज इलाज है, अभी इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक है कि कोई मोजज़ा जो है इसे बचा सकता है, तो वो चुपके से अपने कमरे में गई। अपने कमरे में जाके छोटा उसका जो वो गल्ला था जिसमें वो कॉइन्स डालती थी, उसने उसे तोड़ा और बैक दरवाजे से, पिछले दरवाजे से मेडिकल स्टोर पर चली गई। और मेडिकल स्टोर पर जाके एक सवाल किया, बड़ा मासूमाना सवाल था, और सवाल था, अंकल मुझे मुआवजा चाहिए। वो जो मेडिकल स्टोर पर जो शख्स खड़ा था वो बड़ा हैरान हुआ और उसने परेशानी के आलम में उस छोटी बच्ची को जवाब दिया कि बेटा, यहां पर मुआवजे नहीं बिकते, हमारे पास मुआवजे नहीं होते। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां पर यीशु मौजूद है वहां मुआवजात होते हैं, क्योंकि वो हर चीज करने की कुदरत और ताकत रखता है। मेरा और आपका खुदा मुआवजात का खुदा है, वो जिंदा खुदा है, हमारी जिंदगियों में हर रोज मुआवजा करता है। शर्त उसे जानने की है, शर्त उसे पहचानने की है, शर्त उसे अपना बनाने की है, उसे हकीकी मायनों में अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करने में है। तो जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं तो यकीनन हम बरकत पाते हैं, आप अपनी जिंदगी में मौजज़ा देखते हैं, आप यकीनन आपकी दुनियावी आंखें, आपकी बातनी आंखें खुल जाती हैं, आप उसके भेदों को जानना शुरू कर देते हैं, आप मुकाशफात को, आप खुदा के इलाही इंतजाम को जानना शुरू कर देते हैं। मुझे एक बड़ी जबरदस्त मिसाल यहां पर याद आती है कि एक बादशाह ने कैंप लगा दिए, बहुत जबरदस्त कैंप लगा दिए, सारे कैंप लगा दिए, और एक तरफ उसने दवाइयों का, मेडिकल का कैंप लगा दिया और ऐलान कर दिया जिसको जो दवाई चाहिए आके मुफ्त में ले जाए। एक तरफ कपड़ों का कैंप लगा दिया और कहा जिसको जो कपड़े चाहिए आके मुफ्त में ले जाए। कपड़ों का कैंप लगा दिया, जूते का कैंप लगा दिया, दवाइयों का कैंप लगा दिया, खाने पीने की चीजों का कैंप लगा दिया, दुनिया जहान की हर चीज उसने मुख्तलिफ कैंप में लगा दी और ऐलान कर दिया जिसको जो चीज चाहिए आके ले जाए। और हुआ क्या कि एक शख्स सुबह से शाम तक वहां खड़ा रहा। सिक्योरिटी वाले उसे वॉच कर रहे थे कि यह शख्स सुबह से शाम तक यहां पे खड़ा है और इसने कुछ नहीं लिया। आखिर सिक्योरिटी वाले आगे बढ़े और उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तू सुबह से शाम हो गई है यहां पे खड़ा है और तुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चीज तुझे चाहिए पकड़ और ले जा, मुफ्त में है, फ्री में है। और उसने बड़ी आजिज़ाना तौर पर कहा कि मुझे जो चीज चाहिए वो यहां पर नजर नहीं आ रही, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मुझे जो चीज चाहिए वो यहां पर है ही नहीं है। यह बात जबरदस्त बड़ी तेजी के साथ बादशाह के महल में पहुंची और बादशाह बड़ा गजबनाक हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन उस शख्स को मेरे पास दरबार में बुलाएं। और जब दरबार में उस शख्स को पेश किया गया, बादशाह ने बारोब आवाज से, बुलंद आवाज से उससे पूछा, हां बता कौन सी ऐसी चीज है जो यहां पर नहीं है? मैंने तो दुनिया जहान की हर चीज यहां पर लगा रखी है और तू कहता है कि जो मुझे चाहिए वो यहां पे है नहीं है, बता कौन सी चीज चाहिए तुझे? उसने कहा बादशाह सलामत, हाथ जोड़ के कहा बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। हां हां बोल। उसने कहा मुझे वो चाहिए जो ये सारी चीजें देता है, और जो सारी चीजें देता है वो मेरा और आपका मसीहा है, जिसे उस अंधे ने, उस फकीर ने, उस बेकारी ने जो राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, अपील की, आवाज दी, बुलंद आवाज से कहा, आई इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आई इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और जब उसने उसे पुकारा, वो यीशु को जान चुका था। और जो लोग यीशु को जान जाते हैं फिर वो खामोश नहीं रहते, फिर वो चुप नहीं रहते, फिर जमाना, माशरा उसे चुप करवाने की लाख कोशिश करे, वो चुप नहीं रहते, वो खामोश नहीं रहते, बल्कि बुलंद आवाज से चलाते हैं, पुकारते हैं, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। और हमेशा ये आवाज सुनने को मिलती है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, जा तेरे ईमान के सबब से ये सब कुछ हो गया। तो जब हम यीशु को जानते हैं तो यकीनन हम उस सब कुछ हासिल करते हैं जो वो देने की कुदरत और ताकत रखता है, जो हमारी डिजायर है, जो हमारी ख्वाहिश है, जिसकी हम तवक्को करते हैं।
तो आज जरूरत इस बात की है यसू को जाने, हकीकी मायनों में उसको जाने, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है यसू मसीह ने अपने शागिर्दों से आकर बातें की और कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वो आका नामदाद है, वो तखलीक मौजूदात है, वो फखरे कायनात है, उसके वजूद से कायनात का वजूद है, उसके वजूद से मेरा और आपका वजूद है। वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। शर्त क्या है? उससे आवाज दी जाए, उसे पुकारा जाए। वो आपके दरमियान में, आपके सामने, बिल्कुल जहां पर भी पाक कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं वहां पर हाजिर हूं, वो हाजिर है। सो हम अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सरों को झुकाएं। मैं नहीं जानता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं जानता कि आपका दुख क्या है, मैं नहीं जानता कि आपका रोग क्या है, मैं नहीं जानता कि आपकी मुश्किल क्या है, मैं नहीं जानता कि आपका मसला क्या है, लेकिन जो भी है आप इसे खुदावंद की पाक हजूरी में रखें, बड़े ईमान से रखें। आज अपनी आवाज को बुलंद करें, आज अपने होंठों को खोलें, आज अपने मुंह को जो है वो खोलें उसकी पाक हजूरी में। और यकीनन आज जब आप उसे पुकारेंगे, आवाज देंगे, तो वो आपको ईमान के मुताबिक जवाब देगा। हम अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, बड़ी ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ तेरी पाक हजूरी में है, इस गर्ज के साथ, इस उम्मीद के साथ कि तू अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं करता, तो अपने मांगने वालों को धदकारता नहीं, तो अपने मांगने वालों को रद्द नहीं करता, बल्कि हमेशा ईमान के मुताबिक जवाब देता है। और आज ईमान की मजबूत चट्टान पर खड़े हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और जितने लोग आए खुदावंद इस चैनल के वसीला से मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, खुदावंद आसमान उनके लिए खोल दे, जमीन से जमीनी और आसमान से आसमानी बरकत को नाजिल फरमा। वो खुदावंद ईमान में बढ़े, तुझ में बरकत पाए, घरानों में बरकत आए, बच्चों में बरकत ट्रांसफर हो, किचन पर तेरी बरकत हो, रुपए पैसे पर तेरा मसा हो, हर चीज पर खुदावंद मुकम्मल तौर पर तेरा कंट्रोल, तेरा दबदबा, तेरा रोब, और तू इनकी जिंदगी में अजीब और अनोखे काम करे, क्योंकि तू अजीब खुदावंद है, अनोखा, हर काम जो है वो अजीब है करता है। आज भी तेरे मोजज़ात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर आए खुदावंद मैं इस PMC चैनल के लिए, उसकी सारी टीम के लिए और बिलखसूस आए खुदावंद तेरे बंदा के लिए, पास्टर जावेद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद उसको, उसके सारे खानदान को बरकत दे। खुदावंद हमारी दुआ, हमारी मिन्नत और हमारी फरियाद को सुन और कबूल कर। यह सब कुछ तेरे जिंदा, जलाली और कद्दूस नाम से मांगते हैं।